Welcome back. Let's go. और तो कुछ नहीं भैया, और सब ठीक ठाक है। Baby, I'm Cam's, baby, I'm Cam's. Come to Ink Zone, I will link you. Come to Ink Zone, I will link you. Baby, I'm Cam's, baby, I'm Cam's. Baby, I'm Cam's, baby, I'm Cam's. Come to Ink Zone, I will link you. Come to Ink Zone, I will link you. T-shirt na pawa, tattoo bhi kama. Milde reality checks, jiddhar bhi jama. It's your boy Cam Ink Zone and we are back again, Brown Ink, once again in New Zealand. न्यूजीलैंड मेरी अपने दोस्त कैम के साथ बहुत टाइम से डिस्कस हो रहा था कि हमने न्यूजीलैंड आना है, बट हमारा कोई ऐसे प्लान बना नहीं और इस प्लान को हो चुके थे 8 साल। तो भाई 8 साल से हम प्लान कर रहे थे कि न्यूजीलैंड आना है तो टैटूज़ का कल्चर करेंगे, सॉन्ग्स करेंगे। तो अभी जब ब्राउन इंक स्टार्ट हुआ तो फिर सडनली हमने प्लान किया कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, कि न्यूजीलैंड भी हम जाके आते हैं और टैटू कल्चर भी देख के आते हैं कि वहाँ पे टैटूज़ कैसे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे मौरी टैटूज़ बन रहे थे। तो वहाँ से मेरा प्लान हुआ कि अब ब्राउन इंक तो हमारा शूट हो रहा है तो क्यों ना हम न्यूजीलैंड जाके वहाँ से शूट करके आए। सो मैं यहाँ पे आया था 7 सितंबर को, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन मेरी फ़्लाइट थी भाई, मैं उस दिन यहाँ पे आया और मेरा वेलकम हुआ यहाँ पे। कैम ने मेरा वेलकम किया, उसका नाम भी कैम ही है, मेरे फ्रेंड का नाम जिसके पास मैं आया हूँ। Yeah, I know this guy from long time. Back in 15, we met first time. I went to his studio back in Jalandhar. So I was there for my first tattoo. This is my first tattoo from him. So Tepa mile pehli baar, and we have a quite good bonding from that time. All my tattoos from him. So that was my first tattoo back in 2015. And yeah, then go all over my body. Yeah, getting a tattoo is kind of an addiction. You just start from small one, and then you go on and on and on, whole body, make you look good. Yeah, make you very attractive, you can say. Quite a lot of tattoos in New Zealand. We have done this, back and the front, and we're planning to have a back tattoo later on. Yeah. Most of my design, he planned everything, so I just follow him. So because he's experienced artist, of course, and he's doing great, really good job. So that's why I just leave it to him, whatever he likes it. And artist the marginal kuch cheez banni, that's a different kind of thing. It's, whatever you getting according to your choice, that's different. But you're getting according to artist de naal jo unne kaam karna hai, that's a different level thing. Yep. Then he got into it, so he just give it his 100% when you listen to artists. Apa काफ़ी देर तक plan कर रहे थे, we planning for a long time to bring him in. So after quite long, maybe 7-8 years, now he's here. We had quite a good fun, and we have done a lot of tattoos. And he's a brilliant artist anyways, everyone. New Zealand is a secret of success, I think. जब मैं न्यूजीलैंड लैंड हुआ तो जी वैगन आई थी कैम की, ब्लैक कलर की। आई लव जी वैगन। हम जी वैगन में बैठे और घर आए और बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ। आते ही पार्टी की हमने, मेरा बर्थडे था, बहुत ही मज़ा आया हमें। जब मैं सुबह उठा तो फिर हम सबसे पहले गए यहाँ पे स्काई टावर हम घूमने गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी वेदर बहुत अच्छा था वहाँ पे। Vai vou pra você que a bela mude que morreu. Tanta já da veia, boiando já que eu já bebeira de noite até de hoje é bichoque, choque, choque. Hoje é bichoque, choque, choque. Hoje é bichoque, choque, choque.
सो कैम का जो फुल बॉडी टैटू हमने 8 और 10 साल पहले स्टार्ट किया था, तो तब से हम प्लान कर रहे हैं कि हम न्यूजीलैंड आएंगे। वो 2015 से प्लान कर रहे हैं, तो फाइनली 2024 में हम न्यूजीलैंड आए। तो हमने दूसरे दिन ही कैम का फर्स्ट टैटू किया था थाई पे। और यहाँ का जो टैटू का कल्चर है बहुत ही डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे जो मौरी लोग हैं वो मौरी टैटू करवाते हैं, साइमन टैटूज ज़्यादा करवाते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे पंजाबीज़ और इंडियंस का कल्चर है वो उनका शिवा टैटूज़, कल्चर टैटूज़, अपने रिलीजियस टैटूज़, तो उनका टोटली कल्चर न्यूजीलैंड के टैटू से और वहाँ से अलग है। काफ़ी मैंने पंजाबीज़ देखे हैं जो कॉपी कर लेते हैं, अपने इंडियंस कॉपी कर लेते हैं, नॉट इवन पंजाबीज़। तो मैं ये बोलूँगा कि आप कॉपी मत कीजिए कि आप मौरी टैटू तो बनवा रहे हो पर लेकिन आपको मतलब नहीं पता। क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी मौरी टैटूज़ देखे मॉल में जब मैं गया था। एक पर्सन में जिसने फुल स्लीव मौरी टैटू किया था, बहुत अच्छा था, और उसने मुझे बोला था कि तुम्हारे काफ़ी कल्चर के लोग ऐसे ही मौरी टैटू बनवा लेते हैं, उनको पता नहीं है। लाइक काफ़ी क्लाइंट्स के मैसेज आए थे, आई वॉन्ट अ मौरी टैटू, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। तो यहाँ का जो कल्चर है मौरी टैटू से रिलेटेड है, जो कि इनका ट्रेडिशनल टैटू है मौरी टैटू। तो मुझे भी पसंद है, लेकिन आई लव शेडिंग टैटूज़। सो हम जो प्लान कर रहे हैं फुल बॉडी टैटू न्यूजीलैंड में, वो है शेडिंग, ब्लैक एंड ग्रे फुल बॉडी शेडिंग टैटू। तो वो हम कर रहे हैं। तो हम अलग अलग जगह पे जाके भी टैटू करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ घर पे ही माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। फ्लैटबुश ऑकलैंड में है हम इस वक्त, और बहुत ही अच्छी जगह है ये फ्लैट, बहुत अच्छी जगह पे है। मैं यहाँ पे ही टैटूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने गाने भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मतलब जो मेरा मन करता है मैं यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ। अगर आप टूर के ऊपर टैटूज़ कर रहे हो तो आपको एक अलग अलग चीज़ महसूस होती है, एक अलग चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हो, अलग चीज़ आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि आपको किसी की बॉडी के ऊपर क्या बनाना है, कैसे बनाना है। लेकिन अगर हमारे इंडियन क्लाइंट्स मानेंगे तो ना, क्योंकि उनको तो हमेशा टैटूज़ कॉपी करने होते हैं। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟੂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਈ ਯੂ ਕਾਪੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਟੈਟੂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਟੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਟੈਟੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗਨ ਰੀਲੋਡ ਸ਼ਾਟ। 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਤੇ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਬੇ ਆਕਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ। ਸੋ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਬੰਬੇ ਆਕਲੈਂਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੁਪਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਸੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਆਊਟ। Te adora, menina, te fude, jago de ruda. Te chuto, imagina, de vai por trás da cubunda. Da gente no da viada, ele te vai pro gombuda. 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 जो वहाँ का माहौल था भाई, वो दैट इज़ अ ओल्ड ऑकलैंड यू कैन से। वो एक बहुत ही ज़्यादा पुराना ऑकलैंड था, और मतलब पुराना न्यूजीलैंड आप कह सकते हो कि जहाँ पे गन्स अलाउड हैं। दैट इज़ अ काउ बॉय एरिया। वो बहुत ही अच्छा था भाई। हम वहाँ पे गए तो हमने सोचा क्यों ना हम टैटू कल्चर में थोड़ा सा स्वैग और स्टाइल भी डालें, कि भाई काफ़ी लोग शौकीन होते हैं गन रखने के लिए, गन कल्चर के। तो वहाँ पे गए, मैंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टाइम शायद ब्रेटा गन चलाई। मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। तो उन्होंने जब उनको बताया कि कैम जिंगजोन टैटू आर्टिस्ट एक आ रहे हैं, एक म्यूजिशियन भी हैं वो आ रहे हैं आपके पास, तो उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रखे थे हमारे लिए। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कि हम यहाँ पे कुछ बड़ा शूट करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम करे हुए हैं। My name is Tim. I instruct shotgun shooting here at Braku. The preparation is you arrive, you sign in, and then there's different packages. You are doing the Clays package, where you're going to be shooting shotguns. What I'll do is I'll have you all lined up one at a time. You'll have some practice shots. Then I'll show you what Claybird targets I have. Now the idea is I have 6 targets. If you hit all 6, you win a bottle of bubbles, and you get a photograph, and you go in the frame of fame. So this is one of the main reasons why people come back. They always try to win that bottle of bubbles off me. And Cam, who's been here several times before, has brought you, which is fantastic. Thank you, Cam. And it's a shame about the weather. It's absolutely pouring outside. But never mind, we'll crack on, and we'll do some shooting and have some fun. And welcome. Apparently you are a famous tattoo artist from Dubai in India. Like it? I like the outfit, the Louis Vuitton, yes, all the rest of it. You like your designer gear. Brilliant. Excellent. So what happened was I left England about 7 years ago, and I used to run a shooting clay club in England, and I loved going out shooting pheasants, grouse, deer stalking, and then I had enough of England. To tell you the truth, I had enough of the second wife, and I couldn't get any further away, so I came here. So I've settled here. And then this opportunity came up, so I took it, and I just love it. This is a special invitation for Cam. I've got everything laid out for him. The guns are all laid out there, and we're trying to look for a break in the weather. But unfortunately, it's absolutely peeing down outside. But never mind, we can still go shooting in the wet. It will be a bit miserable,
But we'll go out there, have some fun. We'll see you shooting stuff. I'm going to teach you, and you will not leave until you've smashed some clays. That's a promise. Okay? Nobody leaves without smashing something. So when this interview is over, we will go out there, and then we will load the guns. I'll give you a safety talk, which is very, very important, because these guns are very powerful. I'll talk you through it, and we'll get you hitting some clays, and I'll make you look good. Goodbye, and all the best. Excellent. What's up everybody, it's your boy Cam Zing Zone and we are back again in New Zealand and Browning. So welcome back guys. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਕਲੈਂਡ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ कैम ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ मैं और माहौल बहुत ही सुंदर है दोस्तों, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सो हम आए आज मिस्टर टिम के पास और मिस्टर टिम ने हमें शूटिंग सिखानी है। आज हम शूटिंग कैसे करेंगे और मिस्टर कैम मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे बहुत बार पहले भी आ चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत फ़न किया है। तो आज उनकी टैटू की सीरीज़ है तो मैंने सोचा जो भी हम करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। सुबह हम पहले हेयर कट लेके आए और उसके बाद हम तैयारी किया, हमारे साथ हमारे डायरेक्टर साहब रेडी हो गए और देन बैक टू द शूटिंग रेंज। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है पर आज बारिश हो रही है तो इसलिए हमने सोचा उतनी देर हम इसकी डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मिस्टर किम ने जैसे मुझे बताया कि आज हम शूटिंग रेंज करने वाले हैं, इट्स ओरिजिनल बुलेट और ओरिजिनल शूट करेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एनिमल भी एक काट के रखा हुआ है और मेरे लिए इन्होंने स्पेशल क्या किया है, सुपर वाइन्स, जो कि मैं पीता नहीं हूँ दारू बिल्कुल भी, वाइन्स रखी हुई हैं और बहुत ही अच्छा फूड अरेंज किया है मिस्टर कैम ने और मिस्टर शाइन और पूरी टीम ने। और देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा होगा। अभी तो मैंने डिज़ाइन वगैरह करना है। अगला जो टैटू है हमारा, आज का जो दिन है हमारा यहाँ से शुरू होगा जहाँ से मैं शूटिंग रेंज करूँगा। ये लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं कि न्यूजीलैंड में जब मैं सुबह उठा और पहली आवाज़ आती है कि लेट्स गो फॉर द शूटिंग देन वी मेक द टैटू। मैं क्या चलो हम पहले शूटिंग रेंज चलते हैं, शूटिंग करते हैं। अब देखते हैं एक्सपीरियंस। अभी बारिश हो रही है, हम जस्ट वेट कर रहे हैं, जैसे ही बारिश ख़त्म होगी फिर हम स्टार्ट करेंगे शूटिंग। आई एम लिटिल नर्वस क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गन कभी नहीं चलाई भाई, पर लेट्स गो। अभी देखते हैं क्या होने वाला है। सुपर एक्साइटेड दोस्तों, बने रहो मेरे दे नाल, तुहानू अगे तो अगे दसदे रहांगे की हो रहा है। एंड बहुत वधिया एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ा आ रहा। मी मिस्टर कैम एंड साडे डायरेक्टर साहब। Hi, my name is Cam Randawa. So I'm living in New Zealand, Auckland, from quite a while. So I do the mortgage and real estate investments. मैं अपना भाई camping zone आया है ना, like he just came here for the music and photos. So we're shooting some related tattoos. So that's why we came here. So भाई ने थोड़ा कमाफरा रहे हैं ना, but I know this guy from long time. He has done my first tattoo, this one, back in 2015. So from that time we just together. About the gathia, like we talk, we text each other like quite a while every week or so. So he decided to come here. I said okay, let's do some work together. So now he's gonna do my tattoo, hold my leg, and maybe we're gonna finish tonight or maybe tomorrow. So we're just waiting for the good weather, and we're just here for the shooting tonight. So it's going to be have good fun. मैं ते कैम पहली बार ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ back in 2015 ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਟੂ ਸੀ I think this one. So we have done this first in one go ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ relation strong ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। So we have done a lot of music videos also, and then every time I go back India, so मैं काफी tattoos ਕੀਤੇ by now. So you go to Dubai as well too? Yeah. So we went to Dubai, we went to Phuket, we went to Bali together. So we most of the time we travel together. We're here at Breta by Bracus. So it's a good place for shooting and dine in for lunch and dinner. It's a very good place. And Tim is our friend from long time, back in maybe 3-4 years. We come here every year and have some fun with the guys. And we have amazing shooting experience. Like he got a really nice guns. And yeah, he's a good guy. So he always give us some extra things to enjoy and to continue come every year or so. Yeah, we're planning for a big tattoo on my back and on my leg. So we might finish by one of the tattoo by tonight or tomorrow. Yeah,
So we have a huge plan for the tattoos, and every time I just go back India, I just get one tattoo, or whole sleeve, or whole leg. Yeah. So he has done all the tattoos. Yeah. So yeah, I'm really excited for the tattoos. We're gonna do tonight, tonight and tomorrow. Yeah. So it's gonna be fun. तो वहाँ पे हमने शूट करा और वहाँ पे भाई मैंने जो देखा मुझे बहुत मतलब एज एन आर्ट बहुत अच्छा लगा, पर ये अच्छी चीज़ नहीं लगी कि वो जानवर को मार के मतलब उन्होंने एकदम जिंदा उसको, काउबॉयज का काम ही यही है मारना, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने उसको भी शूट किया कि देखो भाई आजकल ये भी चल रहा है, कबूतर को मार के उसको स्टोन करके चिपका रखा है। दैट इज़ अ आर्ट, बट अनदर आर्ट। पर किसी आर्ट बनाने के चक्कर में आप किसी का मर्डर कर दोगे या मार दोगे, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप गन चला रहे हो, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, दैट इज़ अनदर एक्साइटमेंट कि न्यूजीलैंड में आए हैं तो लेट्स मेक अ शॉट। तो उसी दिन हमने कैम का टैटू भी बनाना था, तो सुबह हमने गन रीलोड की और बहुत मज़ा खाया। वहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ थी खाने पीने के लिए, बहुत अच्छा फूड था। वहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा था, डॉगी था ब्लैक कलर का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में आए थे, सबके एक गंदा टैटू बना हुआ था जिसको मुझे ठीक करना था। मैंने उनको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं न्यूजीलैंड आऊँगा तो आपका टैटू ज़रूर मैं अच्छे से ठीक करूँगा। तो वहाँ से हम वापस आए, फिर हमने कैम का बैक टैटू स्टार्ट किया, जो कि अभी फुल बैक तो नहीं, अपर बॉडी का भी जो प्लान है हमारा वो है स्टिकर टैटूज को लेके। बैक टैटू में उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि उसको लंबाई में टैटू चाहिए था। ज़्यादातर मैं किस चीज़ में टैटू बनाता हूँ, आज मैं आपको खुल के बता देता हूँ सबको कि मेरा मेन मकसद होता है टैटू ब्यूटीफुल लगना चाहिए, बॉडी टाइप के हिसाब से लगना चाहिए आपके ऊपर, आपकी बॉडी को स्वैग और स्टाइल देना चाहिए। वो टैटू ऐसा ना कोई बोल दे आपके टैटू को देख के कि यार अच्छा ये ओह नाइस, आपने इतना पैसा लगा दिया और आपने इतनी मेहनत ले ली और आपने इतना दर्द ले लिया, और उसके बाद कोई आपका टैटू देख के बोल रहा है कि व्हाट इज़ दिस। नहीं, यू हैव टू बी स्पेशल। जब मुझे किसी को सजाना होता है, वो भी लंबे तरीके से कि फुल स्लीव करनी है और फुल बैक करनी है, तो अच्छे से सजाया जाए ताकि जहाँ पे भी नंगा घूमे लड़के लड़कियाँ इसको घूर घूर के देखें कि यार ये क्या बना है। सो इसलिए तो जो भी हमसे टैटू बनवाता है वो फेमस हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टाइल ही अलग है भाई। सो हमने उस दिन वो उसका एंजल टैटू किया, जो कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैनी पीपल मेकिंग टैटूज अबाउट स्टोरीज एंड फैमिलीज, that is also okay, but you have to be prepared for swag and style। वो आपका स्टाइल है, आप ऐसे नहीं बोल सकते उस टैटू को कि ये तो मेरा फैमिली टैटू, मैंने सिंपल सा करवा लिया। सिंपल ही करवाओ, लेकिन उसमें स्टाइल तो होना चाहिए, कोई देखे तो तारीफ तो करे, कोई ये तो बोले कि वाह दैट इज़ द टैटू, क्योंकि वो आज या कल के लिए नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए। सो काफ़ी मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट्स आए, लेकिन मैंने उनके अपनी मर्जी से ज़्यादा टैटू बनाए हैं। उनको पहले बताया कि टैटूज़ ऐसे बनाओ बॉडी के ऊपर ताकि लाइफ टाइम रहे। अभी आप इतना ज़्यादा कंजस्टेड टैटू, छोटा टैटू बड़ी स्पेस पे छोटा टैटू कर दोगे या छोटी स्पेस पे एक्स्ट्रा बड़ा कर दोगे, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो मैं तो अपने ज़्यादातर मेरा मोटिव होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं। आप मेरे पास टैटू करवाने आए हो, यू आर स्पेशल, आई फील आई एम अ स्पेशल। अगर आप मेरे पास आए हो तो यू आर वेरी स्पेशल। सो वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट, है ना। मुझे आपसे, अभी आपने टैटू करवाना है तो मुझे आपसे डिस्कस करना पड़ेगा कि आपने क्या करवाना है। आपने कैमरा बनवाना है तो कैमरा से रिलेटेड मुझे कितने सारे टैटूज निकालने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे, फिर आपको आइडिया देना पड़ेगा। फिर दूसरे या तीसरे दिन आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप उसी वक्त डिसाइड कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो। दैट इज़ योर एटीट्यूड। बॉडी के ऊपर रहेगा यार टैटू, ऐसी थोड़ी उड़ा दोगे। सो ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती कि आप टैटू बनवाने के बाद बोल देते हो यार इसको कवर अप करेंगे। कवर अप नहीं होएगा, वो ना लेज़र होएगा, डोंट डू लेज़र्स।
हाँ बॉडी को ख़राब मत करो। सो काफ़ी लोग यहाँ पे पंजाबी कल्चर साडा उदा दा उदा ही रहना है, इंडियन कल्चर भी काफ़ी ग्रोथ पे है अभी। जो पंजाबी कल्चर ने मुझसे फुल स्लीव टैटू करवाए हैं, आई एम प्राउड कि मैंने वैसे फुल स्लीव टैटूज किए न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स लाइक अनदर प्लैनेट, द ग्रीन प्लैनेट, दुनिया से अलग है ये। और यहाँ पे आपको एक अलग ही वाइब आएगी। और यहाँ का जो मौरी स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। दुनिया में सिर्फ एक ही स्टाइल है मौरी स्टाइल, जहाँ से हमारे रॉक भाई साहब आए हैं, रॉक डिवाइन जॉनसन, जिन्होंने मौरी टैटू का शुरुआत किया। तो अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने को, स्लोली दिखाऊंगा। और आप प्लीज़ भूल मत जाइए, आपको सब्सक्राइब करना है ये चैनल जल्दी से जल्दी, क्योंकि आगे से आगे बहुत सारे स्टोरीज़ और बहुत सारे एपिसोड्स टैटू के रिलेटेड आने वाले हैं। और जिथे तक पेन की गल कही, पेन इज़ वेरी ईजी फॉर यू नाउ, बिकॉज नाउ इट्स नो पेन, नो पेन, सो मैनी ऑप्शंस यू हैव। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਗੁੱਡ ਕਰੀਮਸ ਨਾਓ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰੀਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਘੰਟੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਸ ਟੈਟੂ ਹਲੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਮ यूज़ करूँगा, then I can make tattoo easily, no pain, make tattoo, no pain tattoos। एक ज़माना सी ਜਦੋਂ टैटूज़ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। they can like it's okay, just do it, I just want tattoo, just do it, कर दो भाजी, no problem, कर दो यार भैया, कर दो बस, आज तो आप फिनिश कर दो, लाइक आ रिएक्शन ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿੰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੈਨ ਉਹ ਟੈਟੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੈਟੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਟੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਟੂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਚਾਂਸ ਆ ਉਹ 80% ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੋ ਪੇਨ ਟੈਟੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਨਥੀਸੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਟੂ ਨਬ ਕਰੀਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਰੀਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇਹ ਕਰੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋ ਪੇਨ ਟੈਟੂ, ਫੁੱਲ ਬੈਕ, ਫੁੱਲ ਲੈਗ ਔਰ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ जिन्होंने करवानी ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ दैट इज़ अ स्पेशल क्रीम नो पेन, दैट इज़ सुपर एक्साइटमेंट। काफ़ी क्रीम्स की ऐड आती है ऑनलाइन, बट भाई अगर आपको सस्ते में कोई क्रीम मिल रही है ना तो वो नम नहीं करेगी, क्योंकि एनेस्थीसिया इज़ एक्सपेंसिव। अगर टैटू के लिए इट्स स्पेशल ऑथराइजेशन क्रीम, गवर्नमेंट से ऑथराइज हो चुकी है, सो उसमें 80-70% आपको नम कर देती है। वो नम करके 2-3 घंटे तो निकल जाएंगे उसके। सो हम उसको यूज़ कर रहे हैं फुल लेग टैटू कंप्लीट करने में। हमारा लॉयन टैटू, गैंगस्टर और कुछ उसमें मास्क, और आगे हमने कुछ अटैचमेंट्स यूज़ करने हैं। पहले फुल लेग करेंगे, फिर हम स्लीव पे आएंगे, जो कि इनकम्प्लीट स्लीव्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर स्लोली स्ट्रक्चर रेडी करेंगे बॉडी का, जिसको अभी टाइम लगेगा। कई अभी तो पहले प्लान नहीं था इस प्रोजेक्ट का कि फुल बॉडी करना है, लेकिन एज ए फ्रेंड आपकी एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, आपका वो क्लाइंट नहीं रहता, आपका दोस्त बन जाता है, आपका एक उसके साथ रिश्ता बन जाता है एज ए टैटू आर्टिस्ट। तो उस रिश्ते को निभाने के लिए आपको बहुत दूर तक, शायद लाइफ टाइम चलना पड़ेगा। जैसे मैं न्यूजीलैंड से इंडिया आता था टैटू बनवाने, अब मैं इंडिया से यहाँ आ रहा हूँ, तो एक टैटू आर्टिस्ट का और उसके एक क्लाइंट का एक रिश्ता बन जाता है। अगर बात उस जगह पे आ जाए, उस चीज़ पे आ जाए कि मुझे अभी फुल बॉडी पे जाना है, सो दैट इज़ अ बिग, क्या बोलते हैं उसे, तपस्या। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। सो थैंक यू गॉड फॉर दिस, इस तपस्या को, और कैम को भी भाई थैंक यू कि वो इतना बड़ा टैटू करवा रहा है, फुल बॉडी करवा रहा है स्लोली। तो हम, अगर आप देखते रहे मुझे, तो मैं आपको वन डे वो फुल बॉडी टैटू ज़रूर दिखाऊंगा। स्लोली हम बना रहे हैं। हमने और भी काफ़ी फुल बॉडी टैटू स्टार्ट किए हैं, लेकिन जब से ये नो पेन टैटू की क्रीम आई है ना दोस्त, तब से बहुत अच्छी चीज़ हो गई। हाँ, वन टेक अ 1 पीस फिनिश। सो बेसिकली हमारे पास फुल बॉडी के ऊपर 4 पीसेस होते हैं, 1 2 3 4। सो अगर आप 6 से 7 घंटे भी एक पीस को लेते हो, तो यानी आप
10 घंटे का ये 4 आर्म कर रहे हो, 10 से 12 घंटे का 4 आर्म कर रहे हो, तो आपको 2 ट्यूब्स में आप ये कर सकते हो आराम से। थोड़ी थोड़ी यूज़ करो, थोड़ा थोड़ा टैटू फिनिश। ईजी फॉर यू, ईजी फॉर मी। पहले मैं लंदन में था, वहाँ पे मैंने बहुत सारी टेक्निक्स नहीं यूज़ की, और अभी मैं न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पे और ज़्यादा एडवांस हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो जो फुल स्लीव मैंने 11 आवर्स में किया, क्योंकि भाई वो बैठे रहे। इट्स जस्ट लाइक अ वाइब कि कोई भी क्लाइंट है जिनके हम फुल स्लीव टैटू कर रहे हैं, तो कि जब तक आप बैठे हो तब तक मैं बैठा हूँ। इट्स अ फन, इट्स अ टॉकिंग सेशन, इट्स अ इमेजिनेशन सेशन। सो टैटू करते करते 10 घंटे कब बीतते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आजकल मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, ब्राउन इंक की टीम सक्सेसफुल, वी आर सक्सेसफुल इन ब्राउन इंक। की ब्राउन इंक एपिसोड्स के थ्रू मैं आपको हर एक इंसान की, हर एक जगह की, हर एक टैटू कल्चर की स्टोरीज बता सकता हूँ। यू कैन सिक्योर, आप सिक्योर हो सकते हो वीडियोस देख के और ज़्यादा, कि आपकी बॉडी के ऊपर कैसा टैटू होना चाहिए। आप सजेस्ट कर सकते हो अपने दोस्तों को। ब्राउन इंक में अभी हमारे पास बहुत कुछ आने वाला है, जैसे हम अभी इसके ऊपर टास्क टैटूज़ करने वाले हैं, और हम इसके ऊपर सेलिब्रिटी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, और इसके ऊपर मोस्ट वर्स्ट टैटू जो इंडिया के मोस्ट बिगेस्ट, जिन्होंने फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, या टैटू के रिलेटेड जो भी इसके अंदर बहुत कुछ है दोस्तों। आई एम सुपर एक्साइटेड, बट यू हैव टू बी बेल आइकन आपका दिमाग का ऑन करना पड़ेगा, और मेरे यूट्यूब का भी, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्राउनिंग के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। इफ़ यू आर टैटू आर्टिस्ट, और आपको भी ये चीज़ें हेल्प कर सकता है कि अगर आप किसी देश में जा रहे हो, वहाँ से स्पॉन्सर्स कैसे ले सकते हो आप, और आप अपने सोशल नेटवर्क्स के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हो टैटू इंडस्ट्री में। अगर आप टैटू लर्न कर रहे हो तो उसके बारे में भी आप जान सकते हो। आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो ब्राउन इंक, आप इसके मेंबर भी बन सकते हो अगर आपको लर्न करना है हाउ टू डील विद टैटू इंडस्ट्री। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है सर्दी से भाई। ओह, बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना वो मैं सहन कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी मैं सहन नहीं कर सकता, तो मुझे 24 घंटे हीटर चाहिए। और ये सब के सब भाई शॉर्ट्स और ये यहाँ पे सब डाल के घूम रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं समर आ चुकी है, और भाई मेरी तो ठंड में गांड फट जाती है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं ठंड नहीं भाई सहन कर सकता, सीधी सी बात। तो मैंने पहले ही बोला था भाई वहाँ ठंड कितनी है, तो मैं अपनी जैकेट्स वैकेट्स कैप वगैरह सब कुछ लेके आता हूँ। आप देखोगे कि सब आपने निक्कर पहनी हुई है और मैंने गरम अपना गुड पजामाज बैलेंसियागाज पहन रखे हैं, सो दैट इज़ मोर गुड। और भाई यहाँ पे सच में ठंड है बाहर। जैसे ही मैं वैगन से बाहर निकलता हूँ ना, एक सीनरी को देखता हूँ, गाड़ी में बैठे हुए सीनरी मुझे अलग नज़र आती है न्यूजीलैंड की, बट जब मैं बाहर निकलता हूँ तो हवा चीर के जाती है मेरी, तो फट के हाथ में आ जाते हैं। इट्स वेरी लाइक हार्ड। तो मेरी तो यही होती है सबसे ज़्यादा कि मेरी आंखों ने, मेरे शरीर ने क्या क्या देखा, तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या महसूस किया। सो जो आपने हमें जगह दिखाई वो तो भाई बहुत ही अच्छी थी। मैं आपका भी थैंक यू। आपका नाम क्या है? गगन संधू। हाँ, गगन संधू जी। गगन संधू जी ने हमारा प्रोजेक्ट संभाला है ब्राउन इंक का न्यूजीलैंड में। हमें यही बहुत फ़ायदा हो गया कि ब्राउन इंक वाले हमें हर जगह पे किसी चीज़ को भी रुकने नहीं देते, हर जगह पे एपिसोड तैयार करते हैं। जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, दिखा रहे हैं, दैट इज़ माय न्यू एपिसोड। सो गाइस, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, स्लोली, आराम आराम से। यस, दैट इज़ अ वाइट टाबा ओरिजिनल पार्क, जहाँ हमारे डायरेक्टर साहब हमें लेके गए कि वहाँ पे हम शूट करेंगे। दैट इज़ द वेलकम पॉइंट। सो उससे पहले भाई हम गए थे टावर। जब हम टावर के बिल्डिंग के ऊपर शूट कर रहे थे भाई, वहाँ पे पुलिस आ गई। ओह माय गॉड, फक। हम वेलकम इंट्रो वीडियो बना रहे थे वहाँ पे, और वहाँ पे पुलिस आ गई उस रात, और हम शूट कर रहे थे। पुलिस आई कैसे, जैसे हमारा बिल्डिंग की जो एंट्री होती है गोल सीढ़ियों से चढ़ के जो हम बाहर आते हैं, तो हम वहाँ, हमारी जी वैगन खड़ी है वहाँ पे, पीछे से हमें स्काई टावर दिख रहा है न्यूजीलैंड का, फुल लाइटिंग, और हम शूट कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब अच्छे से शूट कर रहे हैं, कैम भी उधर खड़ा है, इंदर भाई भी उधर खड़े हैं, हमारी टीम उधर खड़ी है, और बहुत ही अच्छा शूट कर रहे हैं वहाँ पे। अभी हम अपने टैटूज़ के शॉट्स ले रहे थे, जो मैंने अपने नया हैंड पे टैटू बनाया है, इसके शॉट्स हम ले रहे थे न्यूजीलैंड में। तो वहाँ पे पुलिस की एंट्री कैसे होती है भाई, पुलिस 5 आदमी यहाँ से आते हैं और 8-10 आदमी यहाँ से आते हैं। 15 से ज़्यादा आदमी थे, ब्लू कलर की ड्रेस और कुछ गन्स पकड़ी हुई। उनको लगा कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं यार ये लोग। ओह माय गॉड, देखो मेरी अभी भी घबरा रही है, क्योंकि भाई मैंने ऐसे पुलिस को कभी नहीं देखा, फिल्मी तरीके से आते हुए। फिल्मी तरीके से पुलिस आई है और हमें देखा उन्होंने। वो भाई वहाँ पे आधा घंटा लगा हमें उनके साथ रिजॉल्व करने को। मिस्टर गगन संधू ने हमें शॉट्स वगैरह दिखाए,
और उनको तसल्ली दी कि भाई हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, आर्टिस्ट आ रखा है हमारी कंट्री में, ये देखो उसका आर्टिस्ट वीज़ा है और वो इस वीज़े पे काम कर रहा है, सो हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, सो दैट इज़ ऐसे ऐसे करके इज़ अ टैटू आर्टिस्ट, और ऐसे कल्चर के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारी बातें। वो काफ़ी तलाशी लेते रहे, उन्होंने जी वैगन खोली हमारी गाड़ी, क्योंकि काले शीशे हैं गाड़ी के और फुल ब्लैक कर रखी है, और उसका नंबर, उनको टेंशन हो गई गैंगस्टर वैंगस्टर ना आ गए, उसके ऊपर टैटूज वैटूज बना रखे हैं, सब लगते वैसे हैं ना, सो बेसिकली जजमेंट वैसे हो जाती है। तो पेपर्स वेपर्स दिखाए, आधा घंटा लगा। तो हमने वहाँ से ऑलरेडी शूट कर लिया था वेलकम वीडियो का, तो वहाँ से हम निकले तो एक ये इंसिडेंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है, आपको अपने पेपर्स अपने साथ रखने हैं। और मैं चाहे लंदन में हूँ, चाहे न्यूजीलैंड में हूँ, चाहे कनाडा, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी देश में जाओ, आप अपने पेपर्स अपने पास ज़रूर रखो, चाहे आप शूट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। भाई मैं सबसे पहले तो ये चीज़ सुन के हैरान हो गया कि न्यूजीलैंड में एक ही पंजाबी लड़का है जिसकी फुल बॉडी पे टैटूज़ बने हैं, वो है मेरा दोस्त कैम। और ये सुन के मैं हैरान हो गया, उसको सब जानते हैं यहाँ पे, बिकॉज ही इज़ सो अट्रैक्टिव, उसकी बॉडी फुल पे टैटू बने हैं, सो अट्रैक्टिव। और मैंने उसको पूछा, मैं क्या मुझसे ज़्यादा तो तुझे जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि ही इज़ अ लोकल। सो यहाँ पे अभी काफ़ी जगह पे जैसे अभी टैटू की नॉलेज पहुँची नहीं है, लाइक ज़्यादातर हमारे आउटसाइड कंट्रीज़ में, इंडिया में तो हमारे पास भर भर के नॉलेज है, अगर आप बात करो तो बाहर की साइड पे टैटूज़ की नॉलेज बहुत कम है। जैसे कनाडा में, यूएस में जो हमारे पंजाबीज़ हैं, इंडियंस हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं आ पा रही। वहाँ पे है नॉलेज, लाइक 50% नहीं आ पा रही, जो कि तकरीबन बराबर ही है। तो अगर आप बात करो, कंसल्ट करो इसके बारे में, देखो, तो आपके एक बढ़िया टैटू बन सकता है। तो टैटू की वजह से जो उसकी अट्रैक्शन बनी हुई है, उसकी वजह से वो आगे से आगे और टैटू बनवाई जा रहा है ताकि और अट्रैक्शन बनती जाए। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्शन, टैटूज इज़ द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्शन। ब्यूटीफुल, क्या लाइन है यार, टैटूज इज़ द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्शन, वाओ, आई लव इट। सो मैनी ऑप्शंस यू हैव इफ़ यू आर इन न्यूजीलैंड, क्योंकि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥੀ ਔਰ ਵੈਲਥੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਰਾਈਟ ਵਨ ਫॉर ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਟੂਸ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵਧੀਆ ਟੈਟੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਟੈਟੂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਡ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਟੂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ I was like a kid 16-15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਟੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਲੇਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਗਲਤ ਟੈਟੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਗਲਤ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ। ਬਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਡੀ ਤੇ ਡਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਡਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। 21, 22, 23 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨੈਕ 'ਤੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਟੈਟੂ ਅਲਾਊਡ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓ, ਐਵੇਂ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਓ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੁਐਲਰੀ ਪਵਾਓ, ਗੁੱਡ ਟੈਟੂਜ਼ ਦਿਖਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਟੈਟੂਜ਼ ਦਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਦਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਆਈ ਐਮ ਆਰਟਿਸਟ, ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ
तो मैं टैटू आर्टिस्ट ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜੇਬ 'ਚ ਔਰ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾइम ही टैटूज़ ਦਾ है, टैटू इंडस्ट्री कितने पहुंच गई हुई है, समझ रहे तुसी। न्यूजीलैंड में क्या है कि यहाँ पे थोड़ी अभी समझदारी शुरू हो चुकी है, अगर हम क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से, उसको बता रहे हैं, तो वो समझ रहा है इस बात को कि मुझे मेरी बॉडी के ऊपर क्या चाहिए। तो न्यूजीलैंड का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि आपने देखा यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग, यहाँ की सड़कें, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही क्लीन और बहुत ही शांत है, पीसफुल है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपकी रिटायरमेंट की उम्र है तो आप यहाँ पे आइए, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हो, आपको पीसफुल जगह पसंद है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके आप टैटू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मौरी टैटूज़ का कल्चर है यहाँ पे, और मैं तो यहाँ पे न्यूजीलैंड आता जाता रहूँगा। और अगर आपको मुझसे टैटू करवाना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और कहीं पे भी जा सकते हैं और आप मुझे मिल सकते हैं वहाँ पे। और स्नैपचैट पे भी आप मुझे मिल सकते हैं, मैं स्नैपचैट पे अवेलेबल रहता हूँ 24 आवर्स। कैम्स इंक जोन मेरी स्नैपचैट है। और न्यूजीलैंड का सफ़र था मेरा यहाँ तक। अब मैं मिलता हूँ अगले देश में। अगला देश कोई भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, दुबई हो सकता है, इंडिया हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। आप मुझे कौन से देश में बुलाना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसी देश में आऊँगा और आपके भी टैटू बनाऊँगा। और मिलते हैं जल्दी। You're watching Brown Ink with one and only Cam's Ink Zone in the house. See you again, New Zealand. Bye bye. Love you.